Good morning, student of class 5. How are you? I hope student you all are fit, healthy. So student, I am teaching you chapter number 16, the Great Indian Desert, and today date is 12. Today date is 12/9/2020. Chapter number 16, the Great Indian Desert. Okay, so student, yesterday, first of all, take out your book, open page number 97 and take one rough copy also, so that you can note down the important points from the board. Is it clear? You can note down the important points from the board, and if there is any doubt, you can ask your doubt in online doubt sessions. Okay, now see student, so if you see, this is the last physical division which I am teaching you. Himalayan range we have already discussed. After that we discuss northern plains, then plateau, this we have discussed peninsula region, that also we have discussed. Now student, we are discussing the great deserts of India, and these are known as Thar desert. These are known as Thar these are known as Thar desert. So let's do some recapitulation what we have done in our previous video, and after that we will continue with the chapter. Okay, I told you that student, if you see that the boundaries of the Rajasthan, maximum part of this Thar desert is in Rajasthan. Is it clear student? Maximum part of this Thar desert is in Rajasthan. Okay, and see, if we are talking about 100%, so in 100% student, 85% part is in India. Why I am telling you this? Because this Thar desert, it's some part is in some another country, that is Pakistan, our neighbor country, that is Pakistan. So 85% part is in part, or you can say area of Thar desert is in India, and 15% area of Thar desert is in Pakistan. Okay, so out of 100%, if we consider student, then 85% part or area of this Thar desert is in India, and 15% area of Thar desert is in Pakistan. Okay, now we will discuss about Thar desert, the part of the Thar desert which is in India. So maximum part of the Thar desert is in Rajasthan. Okay, maximum area of Thar desert is in Rajasthan. Okay, and some part of it extend in Gujarat, पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो है थार डेजर्ट का बेटा वो राजस्थान में है, और कुछ पार्ट एक्सटेंस किया है इसका कहां, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में. ठीक है, और हियर सी
एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स में मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर बताया था सेंट्रल हाईलैंड्स में कि डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। व्हेन आई एम टीचिंग यू एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था इधर क्या है, अरावली हिल्स हैं, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया अरावली हिल्स हैं। इसके कारण जो है ये क्या है, इस पोर्शन में एक्सटेंड नहीं हो पाया क्योंकि इधर क्या आ गई, हिल्स आ गई। सो इट इज इन एक्सटेंड इन सम पार्ट ऑफ द गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। और ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट था यहाँ पे ये नहीं एक्सटेंड कर पाया ड्यू टू हिल्स ऑफ ड्यू टू अरावली हिल्स। ठीक है, तो यहां तक एक्सप्लेनेशन कल आप लोग को दिया था। नाउ आई टोल्ड गिवन एक्सप्लेनेशन व्हाट इज ए थार डेजर्ट, दैट मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। फ्यू पॉइंट्स हैं विच आई एम रीडिंग, which discussion we have done in our yesterday video. The Indian desert lies toward the western margin of the Aravalli hills. Okay, so and undulating sandy plains covered with sand dunes. This region receive low rainfall. Okay, and streams appear during the rainy season and never reach sea. These things we have already discussed in our previous video. And Luni is the only larger river in this region and it has arid climate, means the climate is very hot. Okay, the climate is very hot with low vegetation. Low vegetation बेटा इसलिए हरियाली यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल जो है यहाँ पे बहुत लेस है, रेनफॉल इज वेरी लेस, दैट इज the reason. Okay, so let's start with the book. Open page number 97, all of you. See, what is a desert? A desert area is an area that receive very less rainfall. Okay, or no rainfall at all. ठीक है, कोई भी एरिया डेजर्ट में कब चेंज होता है, जब यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल हो या तो रेनफॉल हो ही ना। इज इट क्लियर? सो and after that we have already discussed that the greater Indian desert also known as these greater Indian desert, these are also known as a Thar desert. Is it clear? So Thar desert stretches from the, ये कहां से कहां तक है, stretches from the Gujarat plains in the south to the border of Punjab and Haryana in the north. ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड के तरफ ये किससे है, अरावली हिल से है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ सी द डेजर्ट इज अ वास्ट सैंडी एंड रॉकी, thus having small hills of a sand. These are called sand dunes. There is very little rainfall. River Luni flow through the region, but it has very little water all through the year. Okay, so उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था सैंड ड्यून्स क्या होती हैं। See the particles of the sand, ठीक है, particles of sand when the wind blow, due to that these particles with the wind, ठीक है, जब wind बहुत तेजी से blow करती है तो these particles what happen, ये particles due to the air ये भी हवा में आ जाते हैं and after that these particles settle down and these particles settle down, so it makes a सैंड ड्यून्स, जिसको हम लोग कहते हैं रेत के टीले बन गए। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है तो ये रेत जो है ये भी उड़ने लगती है। ठीक है, और ये क्या है, सेटल्स होने लगते हैं। ये क्या है, फिर इसके पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स क्या है, सेटल्स होने लगते हैं, तो इस तरह के रेत के ढेर जैसे बन जाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और देखो बेटा इनकी प्लेस क्या है, फिक्स्ड नहीं है, ड्यू टू द विंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, जैसे बहुत तेज आप लोग ने देखा होगा कभी, बहुत तेज हवा चलती है, जैसे कहते हैं ना आंधी आ गई, तो आप लोग देखते हो पूरा धूल उड़ने लगती है प्लेन्स एरियाज में। ठीक है, सो ग्राउंड्स में आप लोग देखोगे जैसे आपको लगेगा पूरे डस्ट पार्टिकल हवा में आ गए हैं। सो व्हाट हैपन्स इन द थार डेजर्ट, इट इज मोस्टली कवर्ड विद द सैंड पार्टिकल्स। व्हेन द एयर ब्लो very fast, then what happen,
these sand particles also move with the air, and after that they settle from one place to another and they form a sand dunes, और उससे ये क्या बनाते हैं, सैंड ड्यून्स बनाते हैं। ठीक है, रेत के जो सैंड के हैं, रेत के क्या टीले बना देते हैं जगह जगह, और इसकी प्लेस फिक्स नहीं है, दे ऑलवेज मूव ड्यू टू द एयर, ये ऑलवेज मूव करते रहते हैं ड्यू टू द एयर। इज इट क्लियर? सो और जो लैंड है, जो फॉर एग्जाम्पल ये जो सैंड्स है, जो रेत है बेटा, ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, इट इज इन दिस मैनर, you can see in the picture also, it is shown in the picture also। so ठीक, अब यहां तक हो गया। अब देखो आफ्टर दैट दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, क्या होते हैं ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ वेरी लिटल रेनफॉल इन दिस रीजन, इन एरिया में जो बेटा रेनफॉल है वो क्या है, बहुत लेस है, देयर इज अ वेरी लिटल रेनफॉल। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड डेजर्ट में है, रेनफॉल इज very less, okay, rainfall is very less in this region, okay। so and there is a one river Luni flows through the region but it is very little water all through the year, ठीक है। there is a one river, main river of Rajasthan, that is river Luni, और मैंने आप लोग को बताया ना कि रेनफॉल क्या होता है बेटा, बहुत लेस रेनफॉल होती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन द वाटर इन द रिवर इज वेरी लिटिल वाटर इन द रिवर। when I teach you about the Himalayan rivers and the rivers which are found in plateaus area, all these river have enough water, so and in the last they join the sea, मतलब इन रिवर्स के वाटर क्या लास्ट में सी में ज्वाइन हो गए, ठीक है। ये रिवर ट्रिब्यूटरी थी, मेन रिवर्स में इनका वाटर ज्वाइन हो गया, और मेन रिवर्स किस में ज्वाइन हो गई, सी में हो गई। बट द रिवर विच इज इन राजस्थान, देर इज अ रिवर नेम इज लूनी, इज द रिवर विच इज इन राजस्थान, एंड स्टूडेंट देर इज water in the river is so less that this water in the end this water do not join the sea, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एंड में जाके जो रिवर, जैसे हर जगह मैंने पढ़ाया कि एंड में रिवर का वाटर लास्ट में रिवर्स डेल्टाज भी फॉर्म करती हैं, और डेल्टा फॉर्म करने के बाद द वाटर फ्लो इन मैनी ब्रांचेस एंड देन दे मिक्स अप विद द दे join the sea, but these types of things is not happen here because already due to less rainfall the water in the river is very less, so this river water do not enter the sea, this river water do not enter the sea, ठीक, okay। now see student, so now we will discuss about the life of the people living in this area, that is in this Thar desert area। now we will discuss that because हमने already main things discuss कर ली। थार डेजर्ट कहाँ है, स्पेशली इसका मैक्सिमम पार्ट राजस्थान में। एक रिकैप्चुलेशन तुरंत कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट वी हैव टू स्टडी नाउ। सो रिकैप्चुलेशन एक देख लो, हमने देखा थार डेजर्ट, सबसे पहले हमने इसकी पोजीशन देखी कि वेयर इज थार डेजर्ट, ओके। थार डेजर्ट इज इन टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, but 85% of the part of this is area of a Thar desert is in India and 15% is in Pakistan। now when we are talking about India, then it is where it is in maximum part is in Rajasthan, and some of the part of a Thar desert extends in the state of a Gujarat, Punjab and Haryana, okay। ये पूरा पढ़ लिया हमने। फिर आफ्टर दैट what type of a we see sand dunes in this area, तो what is the meaning of this वो भी हमने क्लियर कर लिया। when the wind blow very fast then these sand particles due to the air they move from one place to another and they settle down in such a manner that they form a sand dunes, जैसे रेत के क्या बना लेते हैं, टीले बना लेते हैं, और इनकी प्लेस फिक्स नहीं है, ड्यू टू द एयर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू
another. ठीक, आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, सो द रिवर विच इज इन राजस्थान, दैट द नेम ऑफ द रिवर इज लूनी रिवर, and it has a very less water. Due to this, the river water do not enters in the sea. रिवर का वाटर जो है लास्ट में जाके, जैसे हर जगह हो रहा था लास्ट में रिवर वाटर किस में जा रहा था, सी में, लेकिन यहां ये नहीं हो रहा है ड्यू टू लेस रेनफॉल. ओके, so now student, we will discuss the life of the people in Thar desert. Okay, now a people in the olden days use a camel as a transport. Okay, so and camels is also known as a ship of desert. There are few reason for that. See, देयर आर फ्यू रीजन फॉर दैट इन द ओल्ड. अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो स्पेशली पीपल्स हु आर लिविंग इन दिस area, they are very much depend upon the this animal that is known as a camel, and it is also known as the ship of a desert because there are some speciality in this animal. It can live without. सोचो डेजर्ट एरिया, इतना हॉट क्लाइमेट है, जब जब बेटा बहुत गर्मी होती है, गर्मी के दिन में भले हम लोग खाना कम खाते हैं, ठीक है, बट ऑल द टाइम वी ड्रिंक वाटर, बहुत प्यास लगती है. सो इन सच टाइप ऑफ ए climate condition, this animal can live without food and water. They can survive without food and water for many days. Is it clear? So this camel is also known as the ship of desert because they can live without food and water for many days, and this animal can walk on the sand very easily. ठीक है, जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, हम लोग कभी जाते हैं सैंड में जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर आप लोग देखते होंगे कि आपके पैर धंसने लगते हैं. ओके, ऐसा होता है. हमारे पैर जो होते हैं वो बालू के जो सैंड में है, हमारे पैर जो उसके अंदर चले जाते हैं, धंसने लगते हैं उसमें. लेकिन इनकी जो फुट होते हैं स्पेशल टाइप के, इनके देखो आप देखोगे पैडी फिट बोला है. इट ब्रॉड्स पैडी फिट हेल्प इट टू वॉक विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड. ठीक है, इसका मतलब इनके जो पैर हैं वो रेत में धंसते नहीं है, सैंड में. ठीक है, व्हाट इज द रीजन? कैमिल फुट कंसिस्ट ऑफ 2 टोज. ठीक है, इनके कितने टोज होते हैं? इनके फुट में 2 टोज होते हैं. ओके, व्हेन दैट स्प्रेड व्हेन एनिमल टचेस द ग्राउंड. ठीक है, 2 टोज होते हैं, वो फैल जाते हैं व्हेन द एनिमल टचेस द ग्राउंड एंड प्रिवेंट्स सिंकिंग इन द सैंड. और इससे वो उनके पैर जो है बालू में धंसते नहीं है, सिंकिंग नहीं होती है जैसे हम लोग के हो जाते हैं. ठीक है, ए कैमल कैन गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज. डे ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया कि वाई दिस एनिमल इज वेरी सुटेबल फॉर दिस क्लाइमेट, बिकॉज ही कैन सर्वाइव इन दिस एरिया विदाउट फूड एंड वाटर ऑल्सो फॉर मैनी डेज. और दिस हेल्प अस इन इट्स ट्रेवल इन द डेजर्ट्स. सो मैक्सिमम अगर ओल्ड डेज में अगर आप लोग बात करें तो हाउ द पीपल्स आर मूविंग in the desert from one place to another with the help of camel. ठीक है, कोई भी सामान ले जाना होना था कुछ भी, तो वो लोग किसका यूज करते थे? कैमल्स का यूज करते थे. बट अब नाउ इन फ्यू सिटीज एरियाज, जो सिटीज एरिया है जहां पे रोड बन गए हैं वहां पे अदर व्हीकल्स भी चल रही हैं. इन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, बट इन द ओल्ड टाइम व्हाट हैपन, होल मैक्सिमम पार्ट इज कवर्ड विद द सैंड. ठीक है, मैक्सिमम पार्ट में रेत थी. तो हाउ द पीपल मूव, और आप लोग को पता भी है कि सैंड की एक बड़ी क्वालिटी होती है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन इट हीट वेरी फास्ट. सैंड जो होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, सनलाइट से. बट एट द सेम टाइम व्हेन देयर इज नो सनलाइट, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट. ठीक है, it means I am talking about the night. So in the morning time sand become heat very fast. In the same manner when there is no sunlight, it means I am talking about the night,
द सैंड कूल्स आल्सो वेरी फास्ट। तो हॉट दिन में तो क्लाइमेट बहुत हॉट होता है, लेकिन नाइट्स आर कूल। ठीक है, रात में क्लाइमेट क्या होता है, कूल होता है, क्योंकि सैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उसी तरह बहुत फास्ट वो क्या हो जाता है, कूल भी हो जाता है। आ गया समझ में? ओके। नाउ अब प्रेजेंट टाइम्स में आप अगर सिटीज एरियाज में जाते हो, ठीक है, ऑफ राजस्थान, देन यू विल फाइंड दैट अदर व्हीकल्स आर आल्सो मूविंग ऑन द रोड। अदर व्हीकल्स, they are also moving on the road. Now next है, due to scarcity of water. Scarcity word मतलब, ठीक है, नाउ due to scarcity of water, it means the quantity of water is very less. पानी की यहाँ क्या कमी है, वाटर इज वेरी लेस, रेनफॉल हो ही नहीं रही है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया था, वेरी लेस वेजिटेशन यू आर एबल टू सी, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स बहुत लेस देखने के लिए मिलते हैं आपको इस एरिया में। दैट इज द रीजन, ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। नाउ व्हाट हैपन, ड्यू टू स्कैरिसिटी ऑफ वाटर देयर आर हार्डली एनी प्लांट्स। ओके, एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स है, वेजिटेशन है, यहाँ बहुत लेस है, बिकॉज rainfall is very less, and if there is no rainfall, the quantity of the water in the land, soil में जो water है वो बहुत less है, तो plants कैसे survive करेंगे? So there are only few some special types of a plants which can survive in this area. ठीक है, like cactus, किक्कर, cactus, किक्कर, okay, so these are the name of the plants. Only few special types of a plants which can survive in this desert area. ठीक है, बाकी प्लांट्स जो है यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, प्लांट्स सच एज कैक्टस है, किक्कर है एंड बबूल, ओके, विच रिक्वायर लेस वाटर, these plants require very little water. That is the reason these types of plant they can survive in these desert area. Is it clear? Now you will see these plants have very deep roots. इन प्लांट्स की जो रूट्स होती है बहुत नीचे तक जाती है, जिससे कि उनको अंडरग्राउंड वाटर मिल सके सर्वाइव करने के लिए। ओके, डेजर्ट प्लांट्स आर यूजली थॉर्नी, थॉर्नी मीन्स कांटे वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड अनदर थिंग, दे आल्सो हैव वेरी लॉन्ग रूट्स विच रीच डाउन टू टैप अंडरग्राउंड वाटर। जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि ओनली सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ए प्लांट्स कैन सर्वाइव इन दिस एरिया, ओके, लाइक कैक्टस, किकर एंड बबूल। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लांट? स्पेशलिटी इज दैट दे require very less water, little water, in little water they can survive. And another thing is that all these plants are thorny, means उनके क्या होते हैं, कांटे होते हैं। and another important thing is that their leaves is also very small. इनकी लीव्स भी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा, देर इज अ प्रोसेस ऑफ ए ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स आल्सो। we student, we also lose water when the climate is very hot. तो हमें बहुत पसीना आता है ना, स्वेट करता है ना, हमारी बॉडी से बहुत सा वाटर ऐसे भी बाहर होता है ना। सो दो so this is a process, transpiration is a process in which the plants also lost water. ऑलरेडी वाटर की बहुत कमी है, इसीलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। आया समझ में? ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 90।
8. So now turn to page number 98. So oasis. So what is oasis? Oasis is the okay. Oasis is the place. Okay, oasis is place in the desert में ये ऐसी प्लेस होती है जहां अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है. Is it clear? Oasis is the place in a desert where underground water come on the surface. ठीक है, that is known as oasis. Is it clear? So in some places oasis are found in this desert area. And what is oasis? Oasis is the place in the desert where underground water comes to the surface. और डेट पाम्स आपने सुना होगा, ग्रो हियर. जो खजूर होते हैं, खजूर के पेड़ बहुत होते हैं, ठीक है, खजूर होता है यहाँ पे, डेट पाम्स. ओके, एंड दिस एरिया वेयर जहाँ पे ओएसिस है, मतलब जहाँ अंडरग्राउंड वाटर लैंड के सरफेस पे आ जाता है, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल्स, लॉट ऑफ विलेजेस आर अराउंड दिस एरिया. देखो ओल्ड टाइम में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम, मैक्सिमम आप लोग देखोगे जो शहर विलेजेस जो होते थे वो हमेशा किसके, रिवर्स के किनारे हुआ करते थे. सो डैट द बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ वाटर इन आवर डे टू डे लाइफ. वाटर इज ओनली नॉट ओनली यूज फॉर cooking or drinking purpose, but there are many activities in which we need lot of water. तो मैक्सिमम प्लेसेस आप देखोगे, मैक्सिमम शहर क्या है, नदियों के किनारे बसे हुए हैं, है ना. तो इसी तरह ओएसिस इज द प्लेस इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम ऑन द सरफेस. सो मैनी विलेजेस आर, यू विल फाइंड मैनी विलेजेस अराउंड दिस ओएसिस, बिकॉज वहां क्या है, वाटर इज वेरी लेस, वाटर बहुत कम है. दे द लाइफ ऑफ द पीपल in this area is a very difficult. ठीक है, the life of the people who are living in this area, their life is very difficult. It is very difficult to survive in such a harsh climate. इतने harsh climate में survive करना is not very easy. Is it clear? So oasis है तो उसके अगल बगल, क्योंकि वाटर है तो उसके अगल बगल आप देखोगे बहुत से विलेजेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और जहां खजूर के पेड़ बहुत होते हैं बेटा. टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल. ठीक है, अब देखो नाउ आप ये सब मैक्सिमम जो बातें की मैंने, मैक्सिमम अब ओल्ड टाइम में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी. नॉट नाउ द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द राजस्थान हैज चेंज because due to all the problems are arising due to water, because the land is totally, maximum part is covered with a sand. ठीक है, पूरी रेत ही रेत है, ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो सॉइल नहीं है, सारे रेत है पूरी. सो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या है, क्लाइमेट बहुत हॉट था और देयर इज ड्यू टू लेस रेनफॉल, इट्स अ वेरी प्रॉब्लम. Even they are facing lot of problems for the drinking water. Even they are not getting the clean water. Drinking water की बहुत प्रॉब्लम थी. लेकिन बट नाउ इन प्रेजेंट टाइम इफ यू consider the life of the people of the Rajasthan has been changed. The terms and condition which in the old time and in the present time there is a lot of change you will find. ठीक है, अगर ओल्ड टाइम की बात करें तो उस समय टर्म्स ऑफ कंडीशन, लिविंग सर्वाइविंग कंडीशनें क्या थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी. ठीक है, दैट इज अ रीजन वहां के लोग क्या है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. और आप कह सकते हो भाई इन सर्च, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए बंजारास भी बोला जाता है उनको. ठीक है, सो they are always on the move, so they are called it nomads. Nomads क्या है, the nomads of the Thar deserts are called it Banjaras. ठीक है, उनको बंजारास भी बोला जाता है. they are moving from one place to another.
this we have discussed, student. Okay, now in the next video we will discuss the how the life of the Rajasthan, or how the life of the people who are living in this desert area, how their life become comfortable. Okay, this will be discussed in the next video, how the life of the people living in Rajasthan changed in present time. Okay, thank you, student.